أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. جگہوں پہ جانا جہاں پانچ نمازیں کیا وہاں پر کلمہ صحیح ایسی جگہوں پہ چلنا ایسے لوگوں سے ملنا واقعی میں اس سے آدمی کی کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے. آدمی جو ہے چلتا ہے پیدل چلتا ہے کیفیت بنتی ہے اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یہاں کے اندر جاتا ہے بیٹھی کا مسجد کے اندر جاتا ہے اور ایسے قسم سے ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگ ملتے ہیں 15 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے سجدہ ہی نہیں کیا اللہ کو جانتے نہیں ایسے لوگ ایک جگہ پر ایک گھر کے اندر گئی ملاقات کے لیے بڑے میاں سے انہوں نے ملاقات تلاش کرتے 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 ایک مکان ان کو ملا مکان کے پاس گئے جب ملاقات ہوئی تو بڑے میاں کی 90 سال کی عمر تھی. وہ جماعت اس کے قریب گئی پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان لیکن زندگی میں نہ جمعہ پڑھی ہے نہ عید پڑھی ہے. جمعہ ہے ابھی زندگی میں نمازی نہیں پڑھا یہ جمعہ بھی میں نے لکھی تھی. پھر اسے لے کر جب پوچھا کہ کلمہ تو وہ تو کہہ رہے کہ وہ تو مجھے پتا نہیں ہے کلمہ ان کی زبان پر نہیں پوری فیملی ہے ایسے قصے میں تو واقعی میں اللہ پاک نے اس امت پر فضل کا معاملہ فرمایا کرم کا معاملہ فرمایا کہ دونوں کی جماعتیں چلی ایسے ایسے ملکوں تک پہنچنے کی سبیل ہمیں ملی راستہ میں ملا ورنہ پتہ نہیں امت کہاں جاتی یہ جماعت. اچھا یہی حال شہروں کے اندر ہے جہاں آپ شہروں کے اندر چلے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ آپ حضرات بڑے قابل مبارکباد اللہ تعالیٰ اس آپ کے سفر کو بہت بہت قبول فرما بہت قبول فرما قیامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس میں اور مزید آگے بڑھے گی ہر لائن کے آدمی کی ہمتیں کھل جاتی ہے اور سب سے بڑی بات آدمی کا تعلق اللہ سے بڑا قوی ہو جاتا ہے بڑا مضبوط قسم پرسوں میں کئی کارگزاریاں ایسی ہیں جن کے سالہ سال کھلنے لگے سالہ سال 4 مہینے لگے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی زون میں جو کیفیت ہماری بنی ایسی کبھی نہیں بنی. وہ چلنا وہ ہاتھ اٹھاتے ہی آنکھوں میں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں آنسو لانے نہیں پڑتے رونے کی شکل بنانی نہیں پڑتی بلکہ حالات ہی دن بھر کیسے ہوتے ہیں آدمی لوگوں میں چلتا ہے کبھی وہاں سے نکالا کبھی گاؤں کے باہر کبھی وہ ٹرین کے اندر 10 لوگ جب ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو آدمی کے اندر کی کیفیت ہے ایک دم بدل جاتی ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ کوئی باقی نہ ہو. اب اس سے آپ اندازہ لگا اب اس وقت آپ چلے کے اندر تو بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے کہ جو ابھی دین سے بہت دور ہے. ابھی پہلا فرض نماز ابھی زندہ نہیں ہے پھر آگے چلے معاملہ تو بہت دور کی بات ہے. پھر اور مزید ایسے بھی کہ جہاں پر کلمے کے لالے اور ارتداد پھیل رہا ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. ابھی ایک جگہ گور کی جماعت چلی یہ ہمارے گجرات کی کارگزاری ہے ہندوستان کی نہیں گجرات کی ماشاء اللہ جتنے ادارے ہیں جہاں ماشاء اللہ دلی کی محنت ہے سب کا بھی بہت بڑا طبقہ باقی جماعت وہاں پر چلی تو وہ دیہاتوں سے گزرے تو پتا چلا کہ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن اس میں بڑی عمر کے چاچا تھے تو چاچا کہنے کہ نہیں یہاں تو مسلمان ہے بہت پہلے مسلمان تھے وہ خیر جماعت ٹھہری. دیکھیے جو آپ کا ٹھہرنا ٹرین کے اندر آپ جو حضرات ٹھہرتے ہو وہاں پر اور جو عمل کرتے ہو کوئی ملے نہ ملے کوئی سنے نہ سنے لیکن آدمی ٹھہرتا ہے نا تو ہمارا ٹھہرنے سے ہماری ایک بھی چیز جو ہے وہ نفے سے خالی نہیں ہے. یاد رکھنا ہمارا ایک قدم بھی نفے سے خالی نہیں ہے. ایک پڑوس کی جماعت ہم لوگ یوروپ کے اندر گئے تھے تو وہاں پہ جماعت چلی وہ جو ذمہ دار تھے نا ان کو لے گئے تو مراکز دکھائے سب یہ سب مراکز کہنے لگے پہلی جماعت پیدل چلی پڑوس کی ایک جماعت ایک پہلی جماعت پیدل چلی اور جہاں جہاں وہ انہوں نے رات کا قیام کیا اس وقت کیسا معاملہ تھا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے نہ ٹھیا ہے نہ ٹھکانا ہے نہ کوئی ایڈریس ہے کہ کون ہے یہاں پر اور وہ چلتے تھے اور بھی تلاش کرتے تھے کس پاس میں جاتے تھے پوچھتے ہیں نا
सलाम करते हैं और फिर नाम पूछते हैं। आदमी जोन के अंदर जाता है तो सीधा नहीं पूछता कि गफ्फार भाई कहाँ रहे, बोले अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई के अल्लाह का बंदा कि भाई कहाँ है, तो फिर वो कहता है कि अब्दुल भाई नहीं, रफीक भाई से सलीम भाई के आने से फिर पता कि हाँ मुसलमान का मामला है। वो ऐसे होता था, वो ऐसे तो जमातों ने जा कयाम किया, तो जमात के कयाम की बरकत से वहाँ पर मराकज कायम हो गए। दुनिया के अंदर अब लोग इस लाइन से जो वो चल रहे हैं, वो जमात जो चली तो ठहरे वो लोग, वहाँ पता चला आधा पौना घंटा नहीं बल्कि वहाँ पे कयाम किया, अमल शुरू कर दिया, जमात दुआ में लग गई, अल्लाह के सामने रोने लगी। और फिर जो है वो एक दो साथी मुलाकातों के लिए गए, मुलाकातें पर क्या है, एक दो घंटे मुलाकातें के लिए उनको जसीरा हाथ में नहीं लगा, फिर आए, फिर दुआ में लगे, फिर अल्लाह के सामने रोने लगे, फिर दो चार घंटे के बाद फिर गई मुलाकातों में। ऐसे वो शाम तक ये कोने में उस कोने में इस तरह मुलाकात करते रहे। शाम को पता चला कि 5 मकान मुसलमानों के हैं और वो मुर्तद हो गए, 5 मकान है वो मुर्तद हो गए। फिर उनसे मुलाकात की, उनको लेकर बैठे, नाम बदले हुए थे, तो कहा भाई आप तो मुसलमान हो, तो उन्होंने अपनी जबान में क्या कि भाई आपकी तो खतना हुई है कि नहीं हुई, हाँ भाई खतरा तो हुई है, तो फिर आप बदल ही नहीं सकते, अब तो इस्लाम से फिर ही नहीं सकते, इस्लाम से फिर ही नहीं सकते, बात उसकी समझ में है। फिर उनके सामने जब कलमा पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा देखो हम कलमा पढ़ते हैं, तो ये कलमा जो है ना, कलमा जब पढ़ा जाता है ना उसके असर होते हैं, ध्यान महसूस करके उसका असर होता है। तो कलमा पढ़ने की वजह से वो कलमा तो नहीं बोल सके, लेकिन उनकी आंखों में से आंसू निकलते थे। फिर वो धीमे धीमे इनकी जबान पर जो बच्चों ने कहना शुरू, तो ये बड़ा नफा है हमारा। अल्लाह ताला हमारे सफर को बहुत बहुत कबूल फरमाए। अब तो इस वक्त यहाँ घर गुजारी, असल घर गुजारी तो अल्लाह पाक लेके, लेकिन क्योंकि मैं और आप बहुत है इस चीज पे, चूंकि काम हमें मिला है, जिम्मेदारी हमारी, तो जिम्मेदारी के मतलब ईमानदारी भी होती है और कार गुजारी भी होती है, ताकि इस वक्त जो का काम सही भी हो और बाकी भी रहे, और जहाँ हमें पहुँचना है तो वो काम जो है वो पूरा भी हो, लेकिन फर्द को निशाना बनाए। तो अब यहाँ पर इस वक्त जो है माशाल्लाह जो आप काम करके आए हैं, तो उसकी जो है वो मुख्तसर कारगुजारी है। उसमें पहले तो यह हजरात बताए कि आपके कितने साथी थे, कौन से हल्के की आपकी जमात थी, 4 महीने वाले उसमें कितने थे, फिर उसके बाद आपको कितने जिहाद दिए गए, कौन जोन के अंदर जो कौन सा जोन आपको दिया गया, कितने जिहाद दिए गए, उसमें वहाँ आप पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपने क्या किया, तो वहाँ पर आपने कितने लोगों से मुलाकातें की, नमाज शुरू, नमाज थी या नहीं थी, मस्जिद मदरसा था नहीं था तो नमाज की क्या शक्ल आपने बनाई, कि नमाज को आपने आप क्या मेहनत की कि नमाज जो है वहाँ पे जो है वो शुरू हुई, ऐसे कितने देहातों में नमाज शुरू हो गई, अजान और नमाज शुरू हो गई, कितनी मुलाकातें हुई, वहाँ से कुछ लोग आपके साथ में चले, मसरत का प्रोग्राम आपने किया नहीं किया, तो वहाँ मसरत के कितने आपसे जो वो प्रोग्राम हुए, और पैदल आप जो है वो कितना चले, तो ये कारगुजारी जो है वो हमें सुना दी भाई, ठीक है सुनाएंगे, पहली जमात आ जाए जी। हमारी जमात में 8 साथी मोडासा में ग्रंथ रखना चाहिए, 8 कुल देहात में 20 दिए थे, जमात के 4 महीने वाले कितने थे, आपके 8 में 7 साथी 4 महीने, 7 साथी 4 महीने वाले, एक साथी का जमात का कयाम 16 देहात में होगा, आप लोग जमा कहाँ हो गए, तो बात हुई आपके सामने जी, इसमें साथी जवान तो मर गई, यहाँ कानपुर में हुई, थोड़ा 2-3 दिन पहले मेहनत हो जाती है ना, 10 हो जाते हैं, साथी और मजीद हो जाते हैं। जमात का क्या 17 देहात में हुआ कुल, उसमें से 16 देहात
جو ہم 20 دیے تھے اس میں سے ایک نیا کیمپ. ایک میں نیا جماعت نے 23 دیہات میں ملاقاتیں کی، یعنی جو کیمپ کے بغیر ملاقاتیں. جو 16 دیہات میں آپ ٹھہرے تو 5 گھر سے زیادہ تھے جی 17 اور 23 دیہات ایسے ملاقاتیں کی جن میں 4-5 گھر کم گھر. ملاقاتوں میں کچھ دیہات ایسے بھی ملے جس میں 5 سے زیادہ گھر تھے لیکن وہاں قیام نہیں ہے. آگے بھی جماعت نے کوئی قیام نہیں کیا، ہماری جماعت نے جی ٹینٹ لے کے جماعت نے 11 مقام پہ ٹینٹ لگایا لے کر. آپ کہہ رہا ہوں 5 سے زیادہ تھے پہلے جماعتوں نے نہیں کیا. آپ حضرات اس کو جاتے ہیں. آخر میں ایک دو دیہات ایسے میں آئے تھے، ساتھیوں کی بھی رائے آئی تھی لیکن ہمارا جو نظام بنا ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تو ٹھیک ہے. تفصیل آپ کی بار آئی لیکن جب جماعت میں آدمی چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہے یہاں پہ جو مسلمان ہے 5 سے زیادہ ہے. یہاں ضرورت ہے یہاں کھیلنے کے ساتھ زیادہ ایک دن اور بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سارے ہیں. ایک موقع ہوتا ہے سال بھر میں ہم جاتے ہیں اس ادھر کو لے کر تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر. ایسا نوٹ کرنا چاہیے 5 سے زیادہ ہے 8 ہے 10 ہے 15 مکان ہے اس میں پھر آئندہ ٹھہرنے کی جگہ 11 مقام ایسے تھے جہاں ٹینٹ میں قیام کیا ماشاء اللہ. 4 جگہ پہلے ابتدا میں مسجد میں قیام کیا پھر مسجد سے نکالا تو پھر ٹینٹ میں کیا ماشاء اللہ. بہت اچھا. 4 جگہوں پر زیادہ بارش آئی. آپ جہاں سے چلے پہلے سے سنو نا. پہلے کون سے تھے آپ پہلے سب سے پہلے ہم میگرج میں گئے. میگرج کے 6 دیہات. بوال پہلے آپ کون سے دیہات میں گئے؟ سب سے پہلے بوال میں گئے. بوال میں وہاں پہنچے کیا ہوا؟ بوال میں ہم پہنچے بوال میں ہماری جماعت نے 2 دن کیا ماشاء اللہ. اور مسجد تھی؟ نہیں مسجد نہیں ہے. کتنے مکان تھے؟ 12 مکان تھے. 12 مکان ماشاء اللہ. کتنے بالغ ہم جاتے تھے تو کوئی بھی پہلے بالغ مردوں کی 100% ملاقات کا عزم کرتے تھے جی الحمدللہ وہاں کیا بھی اور مستورات میں بات بھی ہوئی جی 16 مستورات میں ملاقات سب سے ہو گئی جی. پھر اس کے بعد آگے مستورات کا پروگرام ہوا پھر آگے دوسرے 2 دن وہاں قیام رہا جی. ریلیوں میں گئے دوسرا گاؤں. اس کے اندر پھر کیا آپ کی ملاقاتوں میں بھائی جماعت تو پہلے سیدھی اگر مسجد ہے تو مسجد میں چلی جاؤ. اگر مسجد نہیں ہے وہاں پر تو اپنا ٹائم لے کر گئے. کسی کے گھر پہ نہیں ٹھہرنا جیسے ماشاء اللہ انہوں نے ٹرین اپنا جو ہے وہ خیمہ کھول دیا اور اسی میں جماعت ٹھہری. اب اس کے بعد پہلا کام ہے نا ملاقات کرنے کے بعد ان کی ذہن سازی کر کے پہلا کام یہ کرنا ہے نماز زندہ کرنی. پہلا ہی کام بچوں کو آپ جو ہے وہ اذان سکھا دو نماز سکھا دو ان کو جو ہے وہ ساتھ میں لو 1-2 نماز وہ آپ کے ساتھ میں پڑھے. ظاہری شکل ان کو جو ہے وہ بتاؤ اور بتانے کے بعد پھر انہی سے نماز پڑھاؤ. ان سے جو ہے نماز پڑھانی نماز شروع ہو جانی چاہیے. پہلا ہمارا عادت ہے کہ جس میں جاوے ملاقاتیں کرنی ہے. ایک کی ملاقات ہو کوئی بالغ باقی نہ رہے. جیسے ماشاء اللہ انہوں نے سب کی ملاقاتیں کی. اب ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر ان کو آمادہ کرنا ہے اپنے ساتھ میں لے کر کھانے پینے کے ذریعے چائے پلانی ہے ان کو اپنے قریب کیا. آدمی قریب ہو جاتا ہے پھر بات سنتا ہے
बात सुनने के बाद उनको फिर आमादा करना है, समझ में आया ना। तो यहाँ बालिगिन टोटल कितने बालिग थे? 12 मकान है। आपने लिखा कितने थे? कितने हैं? मर्द 12 थे मर्द 12 थे, और पूरे की मुलाकात की। पूरा की मुलाकात है। सर ये नमाज की कोई शक्ल नहीं है? नमाज हम इज्तिमाई हमने नमाज की, आपने तो वो पढ़ी? लोग भी शिरकत किए। जी जी, दो दो मर्द अलग अलग इंफरादी नमाजों में शिरकत की। दो तीन दिन आते दो लेकिन ये जो आ गए ना कि इनको इनसे नमाज पढ़ाने, आपके 2 दिन जाने के बाद यह नमाज शुरू हो जाए। आप यहाँ से 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, यहाँ से आप गए तो फिर यह नमाज शुरू हो जानी चाहिए। रात को वहाँ मकामी साथी को लेके बैठे थे, जी रात को मुज़ाकरे में बैठे थे। दिन में तो वो काम में मशगूल रहते थे। लेकिन अब आए इसको भाई बात समझ में आ रही है। पहला काम हमारा ये कि हमारा नमाज जिंदा करनी है पहले ही, और कौन सी कोई मकान में नहीं, कोई ऐसी भी दरमियान में जगह चटाई साफ जगह साफ की और जो है वो वही चटाई लटका दी और वहीं पे हमने नमाज शुरू कर दी। नमाज पूरी हो गई, वहीं पे चटाई लटका दी। वही जितने 2 आए 4 आए 3 फिर एक दिन के बाद जो इनको जो जाहिरी शक्ल आपने बताई उनसे नमाज पढ़ाओ। अब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, नमाज शुरू हो गई ना तो फिर आगे सारी चीजें होगी। पहला काम हमारा ये कि वहां पे नमाज को जो शुरू कर। भाई बात समझ में आ रही? चलो अच्छा, फिर क्या हुआ वहां से मुलाकात करने के बाद उनकी? उनको नमाज चालू रखने की माफी भी दिलाई और कितने लोगों के अपने कुछ हल्के में बैठकर कल में कुछ सही करवाए? सीखने सिखाने का अमल हुआ वहाँ पर उनको लेके? 3 साथी हमारी तालीम में भी शरीक हुए थे। आपके तालीम में बैठे जी, तो कुछ बातचीत हुई, कुछ पूछा उनसे? तो तालीम में बैठने के बाद कुछ बात बताई उन्होंने? ना बैठते हैं तो फिर आदमी जब सुनता है, ईमान की बातों को सुनता है, कलमा सुनता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुनता है तो अंदर असर होता है। कलमा है उसके पास, कलमा उसने पढ़ा है और कलमे वाला तो अल्लाह का कीमती है। चलो अल्लाह कबूल फरमा, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा वहां से कुछ आए यहाँ पर? आपकी पहली जमात थी? आए वहां से लेकर आए आपके साथ में? नहीं, तो हमारे जब पूरी जो जमात थी कल वहाँ मेहनत में गई थी तो दूसरे साथी उनके साथ में। अच्छा फिर एक तो ये हुआ मसूरात में प्रोग्राम हुआ वहाँ पे। मसूरात में भी अच्छा कितने मसूरात जुड़ी? 16 मस्तूर। चलो वो सुनाओ ना उसको क्या 16 मसूरात जुड़ी, चलो उसमें बात की। किसी को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं वहाँ गाँव में? हम लोग कुछ साथियों को, हमारे साथ जो तालीम में जुड़े थे उनको भी नाश्ता भी कराया था और साथी सब अलग अलग चीजें भी लेके जाते थे, हदिया देते थे। खिलाने पिलाने से आदमी जल्दी गरीब हो जाता है, मानुस हो जाता है। जब आदमी बैठा ना पहले तो उनसे करनी होती है कि आदमी मानुस हो जाए फिर आसान हो जाता है। उसमें कोई खैर ही नहीं, जो मानुस हो मानुस होए भी नहीं, मानुस करे भी नहीं, मानुस होए भी नहीं, उसमें कोई खैर नहीं। तो पहले मानुस माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा। फिर अमल वहां पर हुआ आपके। चलो और ऐसे कितने देहातों में आपने काम किया? 11 में 10 लगाए, 17 में आपने कायम किया। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। और कोई कारगुजारी ऐसी होती है आपको? 40 आदमियों ने हमारे साथ कम ज्यादा हमारे में शिरकत। माशाअल्लाह 40 आदमी आपके साथ शरीक जी माशाअल्लाह। किसी साथी ने वक्त नहीं लगाया, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे ऐसे साथी हमारे साथ शरीक रहे। और जमात इज्तिमाई तौर पर 134 किलोमीटर चली। इज्तिमाई तौर पर 134 किलोमीटर, 22 किलोमीटर सवारी में भी चली आखिर में। अच्छा माशाअल्लाह। और इनफरादी एतबार से मुलाकातों में 174 किलोमीटर साथियों ने मुलाकात की। 174 किलोमीटर चली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अल्लाह कबूल फरमाए। और दो जगह मदरसे के, एक जगह मदरसे का क़याम हो गया है, एक जगह मदरसे की 15 से ज़्यादा बच्चे बड़ोदरा करके जाना है, क़याम हुआ वहाँ, तो इंशाल्लाह वहाँ इंतज़ाम शक्ल से अच्छे। अच्छा, एक जगह तो मकतब शुरू कर दिया आपने जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत बहुत कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और दूसरी जगह अब तक शुरू कर दोगे, वहाँ पे भी 10-15 बच्चे हैं। पूरे जिले में तकरीबन 80 से ज़्यादा 38 लोगों को कलमा पड़ा है, जिसमें से 80 से ऊपर ज़्यादा एक उम्र वाले 3 अफराद, एक औरत और एक 2 मर्द, जिनको कलमा पड़ा। औरत को भी पढ़ा है। जी, बड़ी वो बूढ़ी अम्मा थी, वो उनके साहबजादे ने तकाजा किया। हमारे यहाँ तो होता है कि उनके बेटे को सिखा दो, उसके मेहनत को सिखा दो। हमारे यहाँ बराह रास्त नहीं होता, समझ में? मेहनत के जरिए बच्चों को इसलिए सिखाते कि वो घर में जाके पढ़ेंगे और तो वो सीखेंगे। चलो माशाल्लाह। क्या तासुर क्या रहा फिर आप हजरात का, आपको क्या नफा हुआ? आप हजरात चले, आपको क्या नफा हुआ? हमारा ज़िला है, हमारे ज़िले में इतने गरीब लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है ईमान से। और कई देहातों में ऐसे जाना हुआ कि जहाँ खुद ब खुद रोना आता था, उन लोगों का हाल देख के न माल है न खाने का है, और यानी न दुनियावी सहूलियत है न दीन है। बहुत यानी अफसोस होता था कि अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें दे रखी है, फिर भी यानी जिस तरह कदर होनी चाहिए हम शुक्र नहीं करते। ऐसे बड़े देहात कौन से थे इसमें जो आप ठहरे 11 में, जिसमें 40-50 से ज्यादा मकान हो, ऐसे कोई देहात मिले आपको? 40-50 तो नहीं, उससे कम होंगे। उससे कम है। कितने थे, ज्यादा से ज्यादा कितने थे? वहाँ मेघरज में एक इपलोड़ा है, वहाँ मस्जिद भी है। मस्जिद उनकी? हाँ, हमने मस्जिद में क्या की कोशिश की थी, मना कर दी। मस्जिद में चले गए थे जी, माशाअल्लाह। अंदर सामान रखने वाले थे और मना कर दिया। अच्छा, तो समझाते ना थोड़ा सा। समझाया था लेकिन ना कर दिया। पहला काम तो क्या, किसी को पूछने का नहीं, सीधा मस्जिद में चले जाने का, हिम्मत के साथ। पूछने का नहीं, ठहरे ना ठहरे, जरा इजाजत दे दे, पूछने का नहीं, चले जाने का। फिर कोई मना करे तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, लड़ने का नहीं, हुज्जत नहीं करने की, भाई ठीक है, समझाने का। तो माशाल्लाह पहला काम, माशाल्लाह जमात मजबूत है, पहले ही सीधे चले गए। ताजमहल केस में हमें ऐसा ही किया, हमने मस्जिद में क़याम किया, फिर हमें मना कर दिया था, बाहर हमें कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में क्या टेंट लगा के? वहाँ एक दिन रहे, फिर दूसरे दिन वहाँ से भी असर जोहर के बाद तालीम हो रही थी, और कुछ नौजवानों को लेके इमाम साहब आए वहाँ, तो मना करने लगे। हमने कहा कि ठीक है, हम आपको सर की नमाज पढ़ के निकल, सर के पास निकल गए। आगे आमतौर पे क्या होता शक्ल है? नहीं थी, फिक्र ये थी साथियों को कि रात को जाके कहाँ रुकेंगे। अल्लाह ने निजाम बनाया कि एक दरबार का ढाबा था, वहाँ बाद में कैंप टेंट लगा के कैंप कर लिया। उसमें अपने बस की कोशिश पूरी करनी चाहिए, इसलिए कि आदमी गलत फहमी का शिकार है। क्या है? गलत फहमी का शिकार है, उन्हें पता नहीं अल्लाह कौन है, नबी अलैहि की मेहनत क्या है, हम किस निस्बत पर आए, हम क्या चाहते हैं, तो पता नहीं। तो जब हमारी बात को सुनता है, हमारे करीब आता है, तो ये असबाब है, इसको बदलना पहला काम, पूरी कोशिश करना। जब आप ठहरते हैं ना वहाँ पे, तो फिर रास्ता खुलता ही है। मैंने भी आपको कारगुजारी सुनाई, वो जमात मायूस हो गई, ना उम्मीद हो गई, कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उसमें एक दो हिम्मत वाले थे, ठहरे,
फिर आए, फिर मांगा अल्लाह से, रोए, पूरी जमात रोई, फिर वापस गए, फिर उनसे तलाश किया। हालांकि दूसरी पहली बार होता है तो आदमी को झिझक होती है, भाई तुमने ना पाड़ी પછી क्या माया, आदमी थोड़ा घबराता है, लेकिन आदमी हिम्मत करता है कि कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी सब गए थे तो आपको तो कितना कैसा किस्सा कहा, लाइफ का वाकया सुनते हैं ना बार बार, कैसा आप तो सैयदुल मुरसलीन थे, फखरे रसूल थे, आप जैसे तो कोई जाति नहीं थी, आपके साथ में ऐसा कोई बात नहीं, अल्लाह की निस्बत पे फिर जाना है, फिर जाना है, तो रास्ता निकलता है। भाई बात समझ में आ रही है? इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। तो ऐसा और जो आप कह रहे हैं इसमें 20-25 मकान ऐसे थे। अच्छा, इसमें पूरे देहातों में कितनी जगह पे मस्जिद है? ये जो आप 17 पे कह रहे हैं ना, चार जगह पे, चार जगह, बाकी जगह पे नहीं। तो बाकी जगह कोई शक्ल हमने जहाँ जहाँ हमारी जमात का क्याम हुआ वहाँ अपने साथ जमात में शरीक करते थे, जो भी आता था उसको, और फिर तरगीब देते थे उनको कि भाई अपने मुसलमान के घर, आप किसी घर में जमा होके पूरे दिन न रहते हो, कारोबार वाले आदमी होते बाहर चले जाते थे, रात को मगरिब ईशा शुरू करो, तरगीब लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, कितने देहातों में नहीं है, अभी बड़ा तबका बाकी रह गया। हमारी जोनों के जमातों के जरिए माशाल्लाह इजरात करते हैं, दिल नरम होते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल की मेहनत के जरिए दिल नरम हो जाते हैं। और जमातें अब तो कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो जमात के साथ मामला जो दूसरा हो, ऐसा कहीं भी नहीं है पूरे गुजरात में। बस इतना होता है भाई, यहाँ ठहरने का नहीं आपको, इतना होता है, या कुछ लोग आ जाते हैं, बाकी हाथ चला कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आदमी को जमना है वहां पर, आदमी जमे तो ये फिर जो है ना, जमने से फिर ये सारी चीजें वजूद में आती है। अभी माशाल्लाह जमात ठहरी, अभी शक्लें बनानी चाहिए। भाई बात समझ में आ रही है? हम सब तय करो कि कोई दिया तो बाकी नहीं रहना चाहिए, जैसे मस्जिद मदरसा ना हो, हमारे दावत ना हो, थोड़ी सी मेहनत पर हो जाता है, थोड़ी मेहनत पे, ज्यादा नहीं। तो माशाल्लाह सब दिल नरम हो गए, अल्लाह से कबूल फरमाए माशाल्लाह। भाई दूसरी जमात इसी जोन में चले। नोएडा से मेरे निकलने चले, उसके अंदर 5 साथी 4 महीने वाले हम लोगों को वहाँ से 20 देहात दिए थे, उसमें हम लोगों ने 15 जगह पे बयान किया। तो ये जो जमात चली उसी पे आप चले? उसी पे चले माशाल्लाह। और उसमें हमने 9 जगह पे टेंट लगाया था। हमारी जमात इज्तिमाई शक्ल के अंदर 100 किलोमीटर चली है जी जी, और इंफरादी हम लोगों ने 158 किलोमीटर चल के मुलाकात की। हमारी जमात एक दिन में सबसे ज्यादा में ज्यादा 13 किलोमीटर चली, और एक जगह पे मस्तूरात में बात हुई है, 6-7 मस्तूरात जुड़ी थी, और 6 साथियों को हमने कलमा सही करवाया, बिल्कुल आता नहीं था, उनको कलमा सही करवाया। हमारी जमात के 2 साथियों ने रहबरी भी की, एक गाँव से दूसरे गाँव साथ में चले और मकानात बता के साथ में मुलाकातें भी करवाई, इस तरह से रहबरी की। और हमारे साथ 2 साथियों ने कयाम भी किया है रात को माशाअल्लाह। और 26 ऐसे मकान हैं जहाँ अतराफ में 2-3 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 1 मकान खेतों में, ऐसी 26 जगह के वहाँ पे हमारे साथ गए, सफर करके वहाँ पे मुलाकातें भी की माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग गए? हाँ हम लोग गए, वहाँ जाकर उनसे बैठकर मुलाकातें करते थे। और हमारे अमल में भी ऐसे आपके जो चलने से थोड़ा सा क्या हुआ, वहाँ पे कोई जगह पर नमाज जिंदा हुई, नमाज अजान जिंदा तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन तरगीब भी है। और एक जगह पे रेडियो करके गाँव है, वहाँ पे तरगीब की थी, तो उन लोगों को एक बंदे ने बोला कि मेरे आगे की 2 जगह है मकान के, वहाँ पे मैंने नियत किया कि मेरा मदरसा कायम करना है। फिर वहाँ पे उनके मौलाना आते हैं गारंटा से कुछ, तो मुझे बुलाते हैं हर साल में 2 मरतबा, तो उन लोगों से बात भी की है। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द यानी हमारा मकसद शुरू करना है, जगह है उसके अंदर मकान शुरू करेंगे, ऐसे हम लोगों ने नियत भी किया, खुद हम लोगों ने सामने से बोला।
हजरत ऐसा करते हैं ना, आप आज 2 दिन ठहरे 3 दिन ठहरे, एक तो वो तो तरजीब हो गई, चलो ठीक है, लेकिन तरजीब के बाद वो लोग तैयार हुए तो फौरन उनको अमल पे लगा भाई तवा गर्म हुआ है रोटी पक जानी चाहिए, तवा गर्म हुआ तो क्या होना चाहिए रोटी। अब क्या वो आपके साथ में आए मुलाकात की आपने उसके साथ में बैठे आपने चाय पिलाई आपकी बातें सुनी, अब क्या होता है कि एकदम से आदमी की हिम्मत नहीं होती क्या करना उसे पता नहीं होता, लेकिन अमल को देखता है ना आदमी कर लेता है। वो आपके साथ में उनको 2 नमाजें 3 नमाजें आप पढ़वाते, एक तो ये होता और दूसरा ये होता कि उन्हीं में से किसी को छोटी सूरतें सिखा देते और इतना आते ना भाई ये सूरतें सिखा देते वो फिर उसी को कहते हैं कि भाई जरा आप पढ़ाओ, आप ही क्या करो, हाँ पढ़ाओ, तो वो जैसी तैसी पढ़ाता लेकिन उसकी हिम्मत खुल जाती और 1-2 नमाज वो पढ़ा लेता ना तो फिर माशाल्लाह नमाज शुरू हो जाती। भाई बात समझ में आ रही है, बड़ा अहम अमल है, बड़ा अहम अमल है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। भाई जाते ही नमाज को शुरू करवाना ये हम सबकी फिक्र होनी चाहिए, है ना, कि नमाज वहां पर शुरू हो जाए और ये तरतीब है अमली तौर पर उनको जो है आगे बढ़ा देना, अमली तौर पर एक बार ठीक है हमने हमारे साथ में पढ़ी फिर सीखा फिर थोड़ा लेकर बैठ गया, उसमें समझदार बच्चा है कोई जवान बच्चा है जल्दी याद हो जाता है, 10-15 मिनट लेकर बैठो ना तो माशाल्लाह याद हो जाता है उसे, अब याद हो गया उसे बता दो उससे तरतीब बता दो। हमारी एक जमात जो है ना वो गई अफ्रीका के जंगलों में, तो जमात वहां पर पहुंची पता चला ऐसे ही पैदल तलाश करते 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 तो वो जमात वहां पे कई किलोमीटर चल के पहुंची, मालूम हुआ वहां के 9 मकान है मुसलमान 9 इलाके हैं मुसलमानों के 9 देहाते मुसलमानों के और सब में 100% मुसलमान है, 100% क्या जमात ने तय किया कि अपना वक्त यहीं पे लगाना है, वो पहले उस देहात में गए, जब वहां पर गए तो देखा कि नाम है और कोई चीज नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, यानी इस्लाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कारगुजारी सुनाई कि बाद में इन्होंने कि हमने उनको बिठाया तो पता चला कि निकाह भी नहीं हुए, निकाह भी नहीं हुए, एक ही मजलिस में दादे का बेटे का पोते का निकाह करवाया, बात समझ में आई या? अच्छा फिर मस्तूरात के अंदर कि मस्तूरात को पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, खड़े खड़े पेशाब करती थी, ना कोई चीज याद कुछ भी नहीं, यानी कलमे के अल्फाज भी नहीं, लेकिन जमात ने मेहनत की। अब भाई अब वो तलब वाले थे, जब वो आए वो देखा इन्होंने तो पूरा गांव लग गया इनके पीछे और सारे इनके साथ में और खिलाने पिलाने का इन्होंने शुरू कर दिया। वो कहते कि रोज 2-3 बकरे हम खरीद लेते और फिर पूरे गांव की दावत कर देते तो पूरा गांव जमा हो जाता। अब उसमें इन्होंने नमाज सिखाई, वो कहते एक दिन में कि एक दिन में वो रुकू ऐसा करते थे कि हमसे अच्छा रुकू करते थे। एक बताने क्या होता है करने क्या होता है, तुम्हारी आदत होती है, हम बताते हैं और करते कुछ और है, तो कह रहे कि हमने जैसा बताया ऐसा सुन्नत के मुताबिक रुको, सुन्नत के मुताबिक सजदा ऐसा, और फिर सुनते उनको हमने याद किया छोटी छोटी सुनते तो याद हो गई तो नमाज शुरू हो गई वहां पर 2-3 दिन की जब नमाज और देखा कि सब पूरे सारे लोग आ गए, केवल पहला दिन मेहनत हुई तो दूसरे दिन तो सब और उसी में से फिर हमने एक को इमाम बना दिया, उसी में एक को छोटी सूरतें याद करवा दी, अब वो नमाज शुरू हो गई। अब कितना बड़ा काम हो गया, अब बताओ सभी जमीन पर कब सद्दा हुआ होगा और अल्लाह ताला कितने खुश हुए होंगे, जब बंदा सद्दा करता है ना अल्लाह बहुत खुश होते हैं, अल्लाह बहुत खुश होते हैं और फिर जो सद्दा कराने की मेहनत करता है अल्लाह उससे कितना खुश हुए होंगे, अल्लाह अकबर। नई बात समझ में आ रही है? तो ऐसा आप जितने में चले इसमें कोई जगह नमाज जिंदा हुई, नमाज मुकम्मल ऐसी कोई जगह नहीं है कि जब मुकम्मल नमाज कोई जगह कोई भी एक जगह पे नहीं हुई। अच्छा कितने लोगों से टोटल मुलाकातें हुई आपकी? 65 के करीब, 65 के। क्या तासुर था उनका, लेकर बैठे थे आप उनको? हाँ बैठते थे, कभी नहीं बैठते थे, कभी घर के बाहर उठी जैसे जैसे हम बता रहे ऐसे बैठते थे,
साथी बात भी करते थे, सबसे ज्यादा ईमान की क्योंकि दुनिया की बातें जी जी सही है। दुनिया में आने का मकसद बता रहे थे, ईमान की बात करते थे, सबसे पहले नमाज की फिक्र दिला रहे थे। ये सही चीज नमाज है, अल्लाह का बड़ा हुक्म है, यूं करके बात कर रहे थे। दिल पे लेते भी थे कि हम नमाज तो बाद में कहेंगे, हम नमाज पढ़ लेते हैं। फिर कोई जगह पे अपने बच्चों को भी फिक्र करना है, घर वालों को फिक्र करना है, हमारे से कौन करेगा, इसे सब समझाते हैं, साथ ही जाने तो मुलाकात करते असल लेते थे। इंशाल्लाह ठीक है, हम लोग चालू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, आमतौर पर दीनी अमल क्या थे? जैसे नमाज कुछ पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, और दीन के एतबार से उनकी सत्ता क्या थी? के एतबार से भी कुछ ऐसे यानी शहरों जैसी सत्ता तो नहीं थी। औरतों में भी ऐसा ही था। और तो ड्रेस का बात जगह में तो चैन साटे तो साड़ी वगैरह पहनते हैं। अच्छा, औरतों का कोई मसूरात में कोई प्रोग्राम, एक जगह पे प्रोग्राम हुआ, एक जगह पे मसूरात वहाँ पे जुड़ी। हाँ मसूरात। अच्छा, कितनी मसूरात जुड़ी? 7 मसूरात जुड़ी। वहाँ माकुल नज़्म के साथ बात की। हाँ, पर्दे का है, पर्दे का है। क्या तासुर था मसूरात का? घर वाले जो थे उनके आदमी करीब जो घर वाले मेन थे, वो मसूरात में उनको फिक्र मत थे थोड़े। फिक्र वाले मुल्क को जाने के बाद बोलते हैं ठीक है, आदत तो मसूरा सब दूर है, कर उन लोग दो या पर्दा वर्दा लगवाया, या नबी सब ने फिक्र बात की। वो थोड़े मानुस के करीब है, फिक्र लेने वाली मसूरात थी, वो फिक्र भी दिलाई इनमें से बच्चों के बारे में फिक्र दिलाई वो लोग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब जज़ाए दे। देखो ये मसूरात जो है ना, बहुत मसूरात का काम बड़ा अहम है। मसूरात घर के अंदर जब तक मसूरात दिल पे नहीं लेती, वहां तक घर में दिन नहीं आता। मर्द है फर्द है, मर्द लगा फर्द लगा, औरत लगी खानदान लगा। औरत अगर दीनदार बनी ना तो पूरा खानदान दीनदार बनेगा। और औरत के अंदर अल्लाह ने सिफतें रखी है, इनके अंदर सब्र है, इस्तिकामत है। किसी चीज को पकड़ती है ना तो मजबूती के साथ पकड़ लेती है। आप तारीख में देखो, कोई भी औरत आपको मुर्तद नहीं मिलेगी। मर्द मुर्तद मिलेंगे, दीन से फिर के ऐसे मर्द मिलेंगे, लेकिन कोई भी औरत दीन ऐसी नहीं मिलेगी कि जो मुर्तद हो गई। तो उनमें इस्तिकामत है, मजबूती से पकड़ती है। आप देखो कि थोड़ी सी बात पर अगर थोड़ा और आगे बढ़ती है, शेरूजा लगाती है, अशरा लगाती है, शरीफ पर्दे की पाबंद बन जाती है, तहज्जुद की पाबंद बन जाती है। लेकिन मसूरत ऐसी है कि ऐसा वक्त लगा तहज्जुद बहुत तक नहीं छूटी। ऐसा है तो शरीफ पर्दे का एहतमाम है। फिर वो अपने बच्चों को हाफिज बनाती है, आलिम बनाती है, जिनकी मेहनत करने वाले वो जहनियत बदल जाती है। और औरतों में वो चीज होती है। हम लोग एक मुल्क में गए थे, पनामा में, तो वहाँ एक इदारे के अंदर गए, तो जो जिम्मेदार हजरत थे, तो वो इदारे के अंदर एक बच्चे से मुलाकात करवाई कि भाई मौला ये बच्चा है। तो उसने कहा कि पड़ोस में एक मालदार आदमी है, बशर नाम है, ये उसका बच्चा है। तो उस मुल्क में वो दूसरे नंबर का मालदार था पूरे मुल्क के अंदर। अल्लाह ने बहुत सहूलत, उसकी जो बीवी थी वो मिस वर्ल्ड थी, जो दुनिया की उस वक्त की सबसे खूबसूरत औरत, उससे उसका निकाह। अब कैसे नाजो नखरे उसके होंगे, कैसे उनके जो इखराजात होते, लेकिन उसने उसको अपनी मेहनत के अंदर रखा। नबी अलैहि सल्लम की मेहनत के अंदर वो लेकर आए, अपनी फिक्रों के अंदर उसको पैदल उसने 4 महीने लगा। उसके बाद उसने अपना रूप बदला, घर में मेहनत शुरू की। अब सबसे पहले उस औरत का जहन बना, और जहन बनने के बाद उसने अपने बच्चे को हाफिज आलिम बनाया। वो कह रही थी कि एक मरतबा वो फोन पे बच्चे से स्पेनिश जबान में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि बेटा हम चाहते तो दुनिया की महंगी यूनिवर्सिटी पर तुझे पढ़ाते, इसलिए कि अल्लाह ने खूब पैसा दिया था, लेकिन बेटा हमने तुझको इंसान बनने के लिए भेजा है। वो बच्चों को कह रही कि बेटा मेहनत करो, हाफिज बना, आलिम बना। फिर उसका साल लगा और यहाँ पर आया हिंदुस्तान में जो उसने वक्त लगाया। तो ये एक औरत की फिक्र पर है। औरत जमती वो इस्तिकामत है, वो किसी चीज को ले लेती है ना कि वो दीन में आगे बढ़ जाती है। फिर होने वाले जो नेक पैदा होते हैं, नेक बच्चे पैदा होते हैं, बायजीद बुस्तामी होते हैं, बख्तियार काकी होते हैं, जुनैद बगदादी होते हैं, निजामुद्दीन औलिया होते हैं, बड़े बड़े जब वो औरत के अंदर ये चीजें रखी है। अब देखो ना, अभी मुझे साहब वो जोन की कारगुजारी में हमने औरतों से मुजाकरा किया, तो उसके बाद औरतें कहने लगी, हालांकि वो जहन नहीं था, लेकिन कहने लगी कि ये बातें होनी चाहिए। हफ्ते 10 दिन में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हमारे कानों में पड़ी।
तो क्या होगा, एक जगह पर गए तो बातचीत होने के बाद वो मस्तूरात का तासुर था, तो उसने कहा कि ये तो हमें पता ही नहीं है कलमा और जन्नत जहन्नम, इसका इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, हमें मालूम नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का, कि जो हमारे बच्चे को तो कलमा नहीं आता। एक जगह पर एक मस्तूरत को फिक्र आई कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, इनको कोई कुरान सिखाने वाला नहीं है, कि हमने तो कुरान नहीं देखा लेकिन हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा, इनको कोई सुनाने वाला नहीं। तो ऐसे ऐसे जिहाद है, इसलिए हर जिहादों के अंदर मस्तूरात का मुजाकरा बहुत जरूरी है। मस्तूरात के अंदर हमारा जो माकूल नज़्म है, माकूल नज़्म के साथ मस्तूरात के अंदर बातचीत होनी चाहिए। इसमें जो हमारे अमाल है ना, इस अमाल में खैर ही खैर है। वो अमल होगा, उसके जरिए खैर फैलेगी, बिल्कुल पक्की बात है, बीज लगेगा। समझ में आया? वो हम हमें ऐसा हो कि किसी ने नहीं सुना, बात नहीं नहीं नहीं, वो बीज लग गया। समझ में? हमारा जाना, हमारा बैठना, हमारा कहना कि ये हिदायत का जरिया बनेगा, एक न एक दिन वहाँ जो वो हिदायत का चिराग रोशन होगा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें अपनी मेहनत में कभी नहीं करनी चाहिए, तो जो हमारे वो पूरे पूरे अल्लाह से कबूल फरमा दे। तो ये एक दो देहातों में मसूरात में बात हुई, एक बाकी में नहीं हुई, बाकी में कोशिश की थी लेकिन काबू में नहीं आया, काबू में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो कोशिश तो की आपने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कितनी ऐसी मुलाकातें आपकी हुई? इससे देहातों में ऐसी मुलाकातें 265 के करीब मुलाकातें हुई। तो उसमें कुछ ऐसे उनको जो आपने कुछ आपके साथ कुछ वक्त लगवाया? रहबरी की सिर्फ 2 साल की नहीं, यहाँ पे साथी आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, रहबरी की बहुत बड़ी बात। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। गाँव का लोगों ने जबरदस्ती दावत दी कि वो मुलाकात में गए, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर से खाना भी लेके आए थे, आपको मना किया फिर बोले नहीं हम लेके ही आएंगे। ये ठहरने का निजाम आपका कहाँ होता था, कहाँ ठहरते थे? 9 जगह ऐसी थी वहाँ टेंट में ठहरे। टेंट में कहाँ ठहरते थे? गाँव के बाहर या गाँव के तरफ? मुसलमानों के मकान जहाँ करीब होते हैं वहाँ जगह। हाँ ये है, जहाँ मुसलमानों के मकान है वही करीब में टेंट डाल देने का, तो वहीं पे। तो जो टेंट में हमारा अमल था वो देखते हैं, चलते फिरते लोग देखते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, ये खुला अमल करते हैं, खुला अमल करते हैं, वो देखते रहते हैं। समझ में आया ना? दूर नहीं, चलो बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये ऐसी 11 जगह पे अपने 9 जगह पे आपके टेंट आपने लगाया माशाल्लाह। अच्छा, इसमें कितनी जगहों पे तो मस्जिद मदरसा, ये वही जो अभी इन्होंने सुना ही नहीं है? 4 जगह पे मस्जिद। इसमें कोई ऐसी जगह पे जहाँ मकतब शुरू हुआ हो या नमाज शुरू हुआ, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मस्जिद में ऐसे जैसे नमाज तो चालू ही है। ये कितनी जगह नमाज है इसमें? 4 जगह पे। अच्छा, इसके अलावा कोई नए देहात में आप लोग गए? इनके अलावा ये लोग जो गए उसके अलावा कोई नया देहात आपको मिला हो? नहीं, नया देहात कोई नहीं। नया कोई बेटा में 1-2 देहात मिले थे छोटे, जहाँ एक गाँव था ऐसा, मुकम्मल कयाम वाली कोई जगह नहीं है। कयाम वाली जगह नहीं, इसे जिन्होंने सुना है ना कि कुछ मकान ऐसे थे जो 5 मकान से ज्यादा थे, 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, उसमें कोई शक्ल जो ऐसे थे कि नहीं कह रहे हमको तो यहाँ से कोई दिया, लेकिन जो है आपसे इन्होंने मुजाहरे कि ऐसी जगह पे आप ठहरे नहीं, ऐसी जगह नहीं ठहरे, ऐसी जगह आप नहीं ठहरे। चलो फिर उसको आप लिख लो, आइंदा जो ना ये भी गाँव बढ़ जावे, 17 की जगह 18 हो जावे, 19 हो जावे, 5 से ज्यादा है, और फिर वहाँ हमारा ठहरना लिखा है। अच्छा, कितने लोग लेकर आए आप यहाँ? फिलहाल तो हम लोग गए थे, 2 साथी आए थे, दूसरी की गाड़ी आने वाली है, आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग गए थे? कोशिश की थी कि रात को आ जाए, लेकिन वो बोले कि हम लोग काम खत्म करके कल आएंगे। पूरी गाड़ी 2 जगह से लेके आने वाले थे, तो हम उनका कंटिन्यू जाके बनाएंगे। तो उसको अपने साथ रखना, या करीब आवे ना अपने साथ में खिलाना पिलाना, खाने पीने का रज़्म करना, और इज्तिमाई अमल के अंदर इनको जोड़ना। ये जो यहाँ से बातें होती है ना, ये जो यहाँ इस वक्त तेरा माइक में बोल, तेरा माइक। एक साथी जो अभी आया है वो ऐसा कह रहा था कि आने से पहले कि मैं आऊँ तो सही, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं। मैंने उसको ऐसा कहा रास्ते में कि तू बताइए मत किसी को, लेकिन मैं जैसे नमाज पढ़ूं तो मेरे पास काम करना, और मैं जैसा करूँ ऐसा करते रहने का तलब है, लेकिन यानी डर भी है। ऐसा है, एक दो बस्ती में ऐसा भी लोगों ने ऐसा कहा कि हम घर में मूर्ति वगैरह हो रखी है, नया क्या क्या हो। तो हमारे साथी मुलाकात में गए थे इरफान भाई वगैरह,
तो घर में बैठ के बात हुई तो पूछा कि ये क्यों रखते हो, तो कहा कि ये नहीं रखेंगे तो गांव वाले हमें मार डाले। ये हाल है भाई। अल्लाह हम सबको माफ फरमा, अल्लाह हम सबको माफ। ऐसे लोग आएंगे, जरा उनको लेकर बैठना और उनसे ये भी कहना कि भाई आपने पता सीखवा माटे जावेला है, इसमें जो निकलते हैं ना वो सीखने के लिए निकलते हैं। ये नहीं कि जितना है सबको आता है, वो इनसे ध्यान में होता है कि भाई इन सबको आता है, हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन आपने कहना कि भाई हम भी सीखने के लिए आए हैं, तो आसान हो जाता है क्या भाई, चलो सीखने के लिए तो हमें भी आपको भी सीखना है तो साथ में लेकर। लेकिन ये माहौल में जब आदमी आता है ना तो इस माहौल में फिर रंग जाता है। साहबा रिज़वानुल्लाह तआला की होते ना कि इनके यहाँ जब लेकर आते तो एक माहौल होता था, तो उस माहौल में वो रंग जाते थे। बाकी जो हम सुनते हैं कि वो लेकर इनको बात है, लेकिन वो माहौल में रंग गए और उस माहौल की वजह से इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो देखते ही अमलों को देखते बैठते, एक बात दिल पर लगे जिंदगी बदल जाएगी। तो जिंदगी बदली, हमारा काम हो गया। एक आदमी को हिदायत मिल गई, हमारा काम बोलो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? अल्लाह तो अब जो आए ना जरा फिक्र करके आपके साथ में भी रहे और फिर इनसे रास्ता भी रहे, ठीक है? आप लोगों को क्या फायदा हुआ? आपके अमाल होते हैं ना, तालीम वगैरह सफर होता था तो होती है तालीम, सफर के अलावा मुकम्मल तालीम। सब बैठते थे तालीम में, ऐसा तो होता था कि आए तो दो सो गए तो इधर बैठे, सब बैठते माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब तालीम में बैठते थे। और फिर बाकी अमल भी होते, बाकी अमल होते थे। तस्बीहात की पाबंदी मुलाकात में गए तो जल्दी जल्दी पल्ली बैठे तो बैठ के पल्ली। आपका कितना वक्त लगा पहले? 4 महीने कितने लगे आपको? पहले एक बात, चिल्ले कितने लगे? लगते रहते, चिल्ले 4 साल बाद ही है। ये जोन में पहली बार लगा? नहीं, मैं असल तो उस टाइम 2016 में लगा था। अभी इसके बाद अभी अच्छा, ये आपने दूसरे चिल्ले लगाए और जोन में लगाया, तो दोनों में कुछ फर्क महसूस हुआ आपको? बहुत बड़ा फर्क। क्या? बहुत बड़ा। जोर से बोलो ना। बहुत बड़ा फर्क है जोन के अंदर। भाई सुनते हैं आप? जोन के अंदर वक्त लगाना और सवारी के अंदर वक्त लगाना बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या फायदा होता है इस जोन में? ऐसे जोन में चलने से फायदा ये होता है कि भाई उम्मत का देखते हैं तो फिक्र आती है कि क्या हाल है उम्मत का। जैसे सवारी के अंदर तो शहरों में चलते हैं, मस्जिद तो मस्जिद चलते हैं तो कुछ एहसास ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब जोन में चलते हैं तो पता चलता है हाल क्या है उम्मत का। जैसे हमारे बुजुर्ग फिक्र कर रहे हैं तो उम्मत का ये हाल है, तो सामने अलग में हकीकत में हाल है ही। इसमें अपनी फिक्रें बढ़ जाती हैं, उसकी फिक्रें ज्यादा बढ़े, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह नहीं। बल्कि आम तौर पर ऐसा होता है कि आंसू लाने नहीं पड़ते, आ जाते, रोने की शक्ल बनानी नहीं पड़ती। आदमी जहाँ हाथ उठाता है फौरन शुरू हो जाता है, वो दिन भर का याद आता है कि फुला चाचा के पास गए थे, कलमा सही नहीं था। फुला के पास गए थे, उसने ये बात की। फुला के पास गए थे, उसकी ये हालत थी। फुला के घर में गए थे, उसके घर के अंदर ये देखा कि क्या हम नबी अलैहि सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया से चले गए तो क्या मुंह दिखाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस वक्त कोई फुर्सत हाल नहीं है। उम्मत कैसे जिंदगी गुजारे, क्या होगा हमारा? अजीब वो रातें और वो दिन अजीब होते हैं, अंदर की फिक्र बढ़ जाती है। इसलिए ये चिल्ला बढ़ चढ़ कर है। कई बात समझ में आ रही है? इसलिए आपने तो तय किया कि जाने का है। हाँ, आप तो तय करो हर साल जाना है, फिर मशवरे से जो तरतीब बने जहाँ भेजे, ठीक है ना? माशाअल्लाह। अच्छा, आपस में कैसा रहा? अच्छा रहा था। खिलाया पिलाया शहर वाला आपकी दावत करते थे कि नहीं? यहाँ से खाना पका के भिजाते कि नहीं? आते थे? कितनी बार आए शहर वाले यहाँ से? 2 मरतबा। अच्छा, और आपने? हम लोगों ने गाँव वालों को तो दावत दी, सबको मिलते निजाम नहीं बना, लेकिन उस सिक्के में मुझे नान खटाई बेच दी या फिर कुछ चॉकलेट। नहीं मतलब आप लोग पकाते थे कि नहीं? पकाते थे, आप खुद पकाते थे। तो कभी ज्यादा भी होता था कि नहीं? हाँ, कुछ लोगों को ज्यादा की वैसे ही पकाते थे, 2 या तो खिला दे, साथ में बिठा दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह बहुत बहुत माशाअल्लाह। ठीक है, भाई आ जाओ तीसरी जमात। भाई इधर जोन की पहली जमात क्या है, नहीं है बोल साहब? भाई इधर जोन में
पहले तो मक्की जालू कोई 20 साल देने के लिए हमारा वक्त लगा इधर टोटल साथी 8 साथी और हमारे कयाम गाह की जगह थी कयाम गाह कोई बात नहीं, तो तुम अपने एक ही कश्ती के सवाल है, कोई बात नहीं। आप उर्दू खाओ तो उर्दू में बोलो, ना हो तो गुजराती में बोलो, आप जैसे घर में बात करते हो ऐसे करो। जी हमारी कयाम गाह की जगह थी 15, इसमें से हमने टेंट कायम किया 10 जगह पर। यार कितने दिए थे? 15 दिए। 15 ही दिए थे। इसमें से हमारा टेंट में कायम हुआ 10 जगह पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 10 जगह पे आप 15 में से 10 जगह पे टेंट में ठहरे। जी और 5 छत के नीचे जी। और पैदल हमारा चलना हुआ 153 किलोमीटर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 153 किलोमीटर। हाँ पैदल। और कोई किसी को कह रहे चल रहा है लाख रुपए तुमको पकड़ देंगे तो भी कोई आदमी चले नहीं, और ये अल्लाह की निस्बत पे 10, 15, 20, 25, 50 नहीं, कितना? 153। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए जी। और पेटा गांव के साथ आप अच्छा काम कर दिया है। हाँ, आप चले मुलाकातों में मिलकर टोटल 282 किलोमीटर हुआ चलना हमारा। जिस गाँव में भी मुलाकात में जाते थे हम पैदल ही जाते थे, सवारी का इस्तेमाल नहीं किया। और हमें एक जगह पर नमाज अजान जिंदा की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, बहुत कौन सा गाँव है? दिलशा। वहाँ मदरसा बन था। कैसे आपने शुरू करा यार बताओ ना। वहाँ पर मदरसा पहले शुरू था। पहले मदरसा था। हाँ नमाज नहीं थी। नमाज नहीं थी, मदरसा बंद हो चुका था। फिर हमने जाकर मदरसा का ताला खुलवाया और वहाँ के साथियों को तरबियत दी। तो वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सही भी नहीं था और सोते भी सही नहीं थी, तो हमने उनको सोते 4 मुकम्मल करवाई। बच्चों को करवाई। हाँ उनको फिक्र भी दी दवाई कि आप जमात के साथ उम्मत कायम करें। तो उन्होंने माशाल्लाह इरादा भी किया और नमाज शुरू की है। तो उन्हीं में से किसी को अंदर शुरू करवा दी जी। और उसी गांव के साथ साथी यहाँ पर आए हुए हैं। देखो भाई ये हुआ ना, उन्हीं में से किसी को शुरू करवा दी तो शुरू हो गई। तो स्पेशल इमाम को ढूंढने के लिए तो कब इमाम आ जाए, कब भी होगी वो तो जो जिस वक्त जो तकाजा है उसको पूरा कर देगा। भूख लगी है और आप होटल में खाना लेने जाओ तो क्या होगा? तो भाई इस वक्त तो जो मिल गया, सूखी रोटी है वो भी चलेगी, जो मिल गया ऐसे उस वक्त भाई वो नहीं, उसकी शक्ल में कोई बात नहीं, अभी मोटा ना भाई उसको शुरू करवा देंगे। और उसने शुरू कर दी, देखो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब वो जमा होंगे पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको खुद को फिक्र होगी, तो भाई ऐसा होना चाहिए, बच्चों की फिक्र होगी। अब वो जो बंद हुआ है वो शुरू होगा, तो पहली चीज वजूद में आएगी, बाद में सारी चीजें वजूद में आएगी। भाई बात समझ में आई ना? नमाज असल है, नमाज कायम हो बाद में सारी चीजें होंगी, फिर वही सब कुछ वो करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा सारी चीजें हो जाएगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बता जी। वो 4 साथी हैं, उनमें से एक ने नकद 4 में ले लिया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे जी। अच्छा कोई इसमें कोई जिहाद ऐसा है जो 100% मुलाकात हो गई? जी सारे दिया 100% सब में 100%, सबसे मुलाकात हुई? जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ गिलोरा बाकी है, उसमें 100% मुलाकात नहीं। गिलोरा पे 100% मुलाकात नहीं, बाकी सब में 100% सबसे मुलाकात। भाई बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। ये जनाब अल्लाह की निस्बत पर ये ना ईमान का मुज़ाकरा, दीन की बात करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करना, आखिरत की बात करना, ये आदमी को अंदर से तैयार करता है। वज़दादु ईमाना,
कलमा है उसके पास में, और जब कलमे का मुज़ाकरा होता है, अल्लाह से होने का मुज़ाकरा होता है ना, तो गैर महसूस तरीके से अंदर से क्या होता है, ईमान बढ़ता है और इसका फिर माहौल बनता है। वही बात समझ में आ रही? इसलिए किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, 100% मुलाकात वाली। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। अच्छा, कोई सफर में कितने लोगों ने आपके साथ जो है वो तालीम में शरीक हुए या कुछ वक्त लगाया? जी, तालीम में काफी शरीक हुए, उसमें से ऐसे 10 साथी ने तालीम की के अंदर शरीक हुए। माशाअल्लाह, तालीम के अंदर बैठे। अच्छा, फिर उसके बाद उससे कुछ मुलाकात करने गए? जी हाँ, उनको तरजीह भी दी और उनको कुछ आगे उनकी तस्वीरें जो हमारे साथ लगाओ। हाँ, एक साथी की मुलाकात हुई थी, उसने 40 दिन का निकलने का इरादा, उनका नाम आपने लिखा? मुझे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। अच्छा, मसूरत में कोई प्रोग्राम इसमें कितने हुए आपके? जी, 2 जगह पर हमारा मसूरत का प्रोग्राम हुआ, उसमें 2 जगह पे? हाँ, उसमें एक जगह पर 8 मसूरत हुई। एक जगह पे 8 हुई। क्या तासुर रहा मसूरत का? मसूरत का तासुर ये रहा कि ऐसे प्रोग्राम बार-बार होना चाहिए, है ना? यही है भाई, बार बार होने चाहिए, बार बार इस बात को हम सुने। दूसरी जगह पर 10 मसूरत हो रही थी। जगह पे 10 हुई। अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरी जगह और एक जगह पर हम गए, वहाँ पर मदरसा नहीं था, लेकिन 22 मकान थे। तो पहले ऐसा होता है, मदरसा शुरू था, लेकिन जो मौलाना आगे थे, वो कहा कि मौलाना आगे थे, मदरसा हमारा बंद हो जाता था। इसे हमने तरजीह दी है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक मकान का बंदोबस्त किया है और मकान खरीदने वाले हैं, तो हमने उनको तरजीह ये दी कि आप मकान न खरीदे, पहले 6 महीने 7 महीने आप किसी किराए के मकान में मदरसा शुरू करो, फिर उसके बाद अगर ये मुकम्मल रहता है तो उसके बाद आप मकान खरीदो और फिर मदरसा शुरू करो। तो वो लोगों से कुछ नमाज की एक जगह पे अपना करवाया, तो यहाँ पे भी 22 मकान थे, यहाँ पे भी नमाज शुरू हो जाती है। जी, कोशिश की, तो उनको साथ में लिया, जी, ऐसी कोई शक्ल नहीं बनी। शक्ल नहीं बनी। वैसे नमाज हो, मकतब हो, उसमें कोई मकान या किराया जो ऐसे में कोई स्पेशल मकान की जरूरत नहीं। और कोई यूँ कहे कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ शुरू करो, नहीं, हमको बाहर चौपाल पर दरख्त के नीचे कोई कॉमन जगह है, ऐसी जगह पर शुरू कर देना है, उसको साफ सुथरा कर देना, बिछा देना, चटाई वगैरह बिछा देना, उसको शुरू कर देना। इतना हमारा काम है। इतना हो गया ना, फिर आगे का काम खुद ब खुद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, इसमें कोशिश थोड़ी हो जाती तो नमाज शुरू हो जाती। जी, वो उधर के जो सुरपुर के साथी है, उनको टिकट दिलाई है, उनकी जिम्मेदारी लेकिन अच्छा खासा काम हो गया है, लेकिन अगर के दिल में है जो इसको लेंगे, आगे जल्दी से नमाज शुरू हो जाएगी। नमाज शुरू होगी, फिर आगे काम होगा, फिर आमाल दावत शुरू होंगे, फिर मासूम शुरू होगा, फिर धीमे धीमे शरीयत को सुनने देता होगा। माशाअल्लाह, उस पूरी बस्ती में एक दीनी लहर फैलेगी। भाई बात समझ में आ रही है? इब्तिदा यहाँ से होती है। चलो, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नफा हुआ आप लोगों को? मौका तो ये हुआ कि वन में चलना चाहिए। जोन में चलना ही चाहिए। अच्छा, आप पहली बार चले? आप पहली बार चले? जोन में चलना चाहिए। अल्लाह कबूल फरमाए। और क्या नफा हुआ? अरे, क्यों नफा हुआ कि हम 7 किलोमीटर चलकर और हम सब मुलाकात के लिए गए थे, तो साथी के घर पहुंचे, सलाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनसे कहा कि नमाज के लिए दावत देने के लिए आए, तो साथी ने कहा कि आपको पानी पीना है तो पिला देंगे, लेकिन आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो वो साथी अंदर चला गया और उनकी मशवरा के लिए यही जवाब दिया। लेकिन हमारी कमजोरी ये थी कि हालांकि वहाँ पर 1 घंटा गुजारना चाहिए, 2 घंटे गुजारने चाहिए, लेकिन हमें ये पता नहीं था, तो हम रुके नहीं, फिर वहाँ से वापस चले गए। तो हम जैसे ही उसके घर से वापस निकले तो ताइफ का मंजर याद आया, और जो अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, वही दुआ उनके घर वालों के लिए हमने दी। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनकी नस्लों को, आने वाली नस्लों को हिदायत दे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, बाद मरतबा घड़ी अलग अलग होती है, यहाँ बैठा कुछ बात होती है, फिर अल्लाह पलटते हैं। दिल पलटने वाले कौन है? हाँ, मौका अलग अलग होता है। तो हमें तो हर मौके की तरह से रिक्वेस्ट बार बार जाना है, बार बार जाना है, ठहरना है, बंदों से मदद करना है, खुशामद करना, समझना, रास्ता निकल जाता है, रास्ता निकल जाता है। माशाअल्लाह इन्होंने बीट डाल दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला को रास्ता निकाले। और अब कह दिया कि अब जाने का जी आइंदा कल इंशाअल्लाह चलेंगे। अल्लाह भाई आई तो पहली जमात है, चार साथी आए हुए हैं। चार साथी आए आपके साथ रखे हो? जी इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, दूसरी जमात है। ये जमात जब चल रही थी, उनके साथियों ने मुझे सुना, जब कारगुजारी हमने भी ली कारगुजारी, एक दो साथी ने जब मुलाकात की दूसरी बस्ती में क्या की जगह से दूसरी बस्ती में जा रही थी, रास्ते में दो आदमी मेरी टीका वगैरह लगा ये नाम लो, ये पढ़ो, यानी कि वो लोग पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ो। तो वो खामोश है, कुछ बताया नहीं, कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पर, कुछ कहा नहीं और फिर आगे चले। उन्होंने सोचा कि अमीर साहब को फोन करे, फोन कर अमीर साहब से बात कर लेते। तो साथी ने कहा नहीं, जो अपना अमीर को बात नहीं करना, जिस देहात में जाना है चले जाते। वो लोग तो चले गए कि तुम आगे आ जाओ, हम आगे आपसे मिलते हैं। आगे आप सारे लोगों को जमा करो। आगे बस्ती में पहुंचे तो वहाँ चार आदमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा वो दो होते से मिले थे आपको? उन्होंने कहा तो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो फिर रास्ता है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। और साथियों ने कहा, वो साथी को तो साथी कह रहे हम जब चलते थे तो बातें करते करते चलते थे, तो गफलत की वजह से हालात आए, क्योंकि हमने जिक्र किया तो रास्ता अल्लाह ताला ने खोल दिया। एक बात ये बताई, दूसरी बात ये बताई, हम जो टेंट लगाते थे, अतराफ में कीड़े मकोड़े होते, लेकिन अंदर में कोई नहीं आता था। कीड़ों मकोड़े रात को कुत्ते आ जाते थे और बाहर बैठ जाते थे, ऑफिसर भी वो बोलते भी नहीं थे, और हम जब उठते तो वो चले जाते थे। एक मौलाना, इनको दम की बीमारी थी, वो यूँ कह रहे थे यही जमात में, यूँ कह रहे थे मुझे रोजाना पंप लेने की जरूरत पड़ती थी। मौलाना कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन न पंप की जरूरत हुई, और वो सारी दवाइयाँ जो लेकर गया तो वो सारी की सारी वापस लेकर आए। भाई आ जाओ, अल्लाह ने इसके बाद भी राहत कर दी। मच्छर एक जगह काटे, खाली भिलोड़ा मस्जिद में रुके न वही मच्छर काटे, पूरे सफर में ट्रेन में एक भी मच्छर यानी टच भी नहीं मिले। नूर हल्के की जमात थी हमारी इधर, जो हमने काम किया 10 साथी थे उसमें। साल के उलमा एक थे, 4 माह वाले 7 साथी थे और चिल्ले वाले 2 साथी। कुल कयाम के जिहाद हमें 21 मिल गए थे, उसमें 17 जगह पे जमात में कयाम किया और पेटा जिहाद 34 जिहादों में काम किया। जमात हमारी 121 किलोमीटर इस्तिवाई चली और इनफिरादी 162 किलोमीटर चली। जमात में कुल मुलाकातें जो कयाम वाली जगह थी वहाँ 188 मुलाकात हुई और जहाँ पेटा देहात थे वहाँ 73 मुलाकातें हुई। नमाज, तालीम और खाने में और दूसरे अमाल में हमारे साथ कुल 63 साथी शरीक हुए। मस्तूरात के हमने 3 जोड़ किए, उसमें एक जगह पे 4 मस्तूरात जुड़ी, एक में 3 और एक में 5। मर्दों का जोड़ एक जगह पे किया, वहाँ पे 12 साथी जुड़े। कलमा सही करा एक साथी का। अजान नमाज शुरू जो है अगली जमात ने नमाज शुरू करवाई थी, वो फिर वापस बंद हो गई थी। फिर हमारा कयाम हुआ वहाँ, फिर हमने वापस फिक्र करके वहाँ पे शुरू करवाई। उसके बाद में हमने हमारे मौलाना ने अपडेट भी लिया तो बोले नमाज चालू है हमारी। और कयाम
कयाम के कुल जो हमारा कयाम था वहाँ पे टोटल 123 मकान थे, जो 5, 10, 20 मकान वाले, और पेटा गांव के कुल 80 मकान, और जो 5-7 मकान वाले ब्याह थे उसमें 300 के ऊपर मालिक मारते 188 मुलाकात क्या तासुरात से मुलाकात है। अभी भी वो बात लोग तो सुनते ही है, लेकिन 2-3 मरतबा 4 मरतबा 3 मरतबा तो जाते थे शादी मुलाकात के लिए, मुलाकातों के लिए जाते थे। मुलाकात बात नहीं सुनते, कुछ लोग नहीं सुनते थे, अक्सर तो सुनते हैं। हाँ अक्सर सुनते, और कुछ मुलाकातें होती नहीं थी, 2-3 मरतबा भी घरों में जाते थे तो मर्दों की मुलाकात नहीं होती थी, इसी वजह से 188 मुलाकात हुई थी। कितने लोग आपके साथ? 2 साथी पूरे सफर में। हाँ दो तो नहीं जगह, तो नहीं जगह पे 3 जगह पे चोरी और गोरा रोड, वो तो एक ही जगह जहाँ जमात वापसी रहती है माथा से, लेकिन वहाँ से बेटा गाँव अलहमदुलिल्लाह 25-30 मुलाकातें एक्स्ट्रा और होगी, वहाँ रुके। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अमाल सच्चे होते थे बराबर। पहले दिन हमारी तालीम जरा कम होती थी, सफर में शादी तक जाती थी, लेकिन दोपहर में होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% नमाज 48 रकात रोजाना, पहले दिन भूल गया था कि अपने अमाल पूरे करने हैं। उसके अलावा भी ये तहज्जुद वगैरह की पाबंदी माशाअल्लाह ससुराल की अवार्डिंग की सब सारे लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई मुलाकात है जिनका कोई ऐसा तासुर हो? हमारे एक साथी जरा ज्यादा हिम्मत वाले थे, तो ऐसे 2-3 जगह पे बहुत बड़े भाई लोगों की मुलाकात भी की उन्होंने। हाँ जरा सारी किस्म के शादी यानी दूसरी उन्वान से बात की, लेकिन इनसे मुलाकात हुई, उनको पता चल गया कि ये तबलीग वाले हैं। 3-4 जगह पे ऐसा हुआ, बातचीत हुई, उन्होंने असर भी लिया, और एक हमारे जो बड़ोली के हैं रिकम खान करके, इन्होंने खवास की लकड़ी बनाने का भी बोला है, आज हमारे साथी इंशाल्लाह लेने भी जाएंगे। मैंने कहा ना कि भाई हालात वक्ती होते हैं और वो घड़ी भी वक्ती होती है। इससे पहले अभी कल एक जमात कारगुजारी सुनाई, सो गए तो उसने रात में बहुत सोच की, खाने का नहीं, ठंडे का नहीं, ऐसे निकल जाओ सारी, लेकिन जमात वहाँ बैठे। दूसरे दिन सुबह वही नाश्ता लेकर आया, चाय लेकर आया। कोई बात समझ नहीं, तो कैफियत अलग अलग होती है, दिल अल्लाह के हाथ में। बस हमारा तो जमना, ठहरना, मांगना और अमाल करते रहना, गफलत न हो, अमाल करते रहना, फिर आगे का काम अल्लाह का है, तो अल्लाह पाक फिर दिल फेर देते और रास्ते खुल जाते। भाई बात समझ में आ रही? कितने लोग लेकर आए? वही 4 साथी बताया, लेकिन वो रात को चले गए, तो आज आने का बोला है, बोले आज नहीं आएंगे तो कल दुआ में तो हम पूरी गाड़ी भर जाएंगे। तो आपकी बहुत सारी मुलाकात हुई, आपने बताया नहीं? 188 मुलाकात हुई, जिंदगी की मुलाकात हुई, बहुत सारे आपकी बात सुनी होगी, बहुत सारे ने इरादे भी किए होंगे, ऐसों को उन लोगों के नंबर भी आपने लिए होंगे? सबको फोन किए थे हम, नंबर भी? हाँ सबको फोन किए थे। एक जगह से उम्मीद थी 8 साथी आने की, लेकिन वो फिर कल हम निकले इधर से, उस वक्त थोड़ा उधर कर रहे थे कि भाई आज तो नहीं आ सकेंगे हम, लेकिन कल इंशाल्लाह देखेंगे तो उसकी याद कर लेंगे रिवाज वालों। फोन तो ठीक है उसकी जगह पे फोन, लेकिन आप चले जाओ ना तो आपकी कुर्बानी बनेगी। वहाँ आप पहुँचोगे, मैंने कहा ना कि वो फोन पे मना करे, लेकिन आप पहुँच गए, अल्लाह ताला बदल देंगे। अगर उनमें से पता नहीं फिर आगे कौन से इलाके का वो जिम्मेदार बनेगा, अल्लाह पता नहीं उससे कौन से मुल्कों में काम लेंगे। ऐसे हीरे छुपे हुए तो मैं कहने बस समझ नहीं, ये नहीं
पता नहीं कौन कौन से रहे, फिर कौन से, तो ऐसे आप दिन पूरा आपके पास में शादी सखी बनाओ ना, जितने भी आए 1 2 3 4 जितने भी जाते मतलब समाज में से और समझ कर लेके आओ, यहाँ माहौल में आ गए बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, चल भाई यहाँ पे एक सहूलत ये हुई जी, ये 2-4 देहात ऐसे हैं कि वहाँ के गाँव वाले जो अपने ईमान वाले भाई हैं, उन्होंने अब सबके जगह दे दी जवाब वालों को 2 जगह पे दरगाह में उन्होंने काम की जगह दे दी, बोले जमात वाले यही छोड़ते हैं, और एक कब्रस्तान में और एक मंसूरी बिरादरी का खेत, बोले जमात ये रह जाए तो मैं ये करूँ, तो 4-5 जगह तो ऐसी हो गई कि इन्होंने जमात वालों को जगह दे दी। चलो बहुत भाई आ जाओ। केसरपुरा बस्ती की 7 साथियों पर मुश्तमिल हमारी जमात हिम्मतनगर हल्के में वक्त लगाया है, जिनमें 4 साथियों के 4 माह लगे हुए थे और 2 साथी 40 दिन वाले थे। 127 किलोमीटर पर मुहित हमारा पैदल सफर 127 किलोमीटर पर मुहित हमारा पैदल सफर प्रांतिक से शुरू होकर गांवों में खत्म हुआ। उस दौरान 15 बस्तियों में हमारा कयाम हुआ, 19 बस्तियों में और 7 फैक्ट्रियों में मुलाकात के लिए जाना हुआ। इसकी मसाफत 140 किलोमीटर थी, कुल मिलाकर 267 किलोमीटर पैदल सफर हुआ। हमारी मालूमात के मुताबिक उन बस्तियों में 150 मकानात हैं, जिनमें 195 बालिग मर्द रहते हैं, जिनमें से 145 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उनमें से 2 साथी ऐसे मिले जिनके पहले 4 माह लगे हुए थे और 11 हजरात ने आमाल में हमारा साथ दिया। एक जगह मथुरात में बात हुई और एक जगह अजान नमाज जिंदा हुई। 5 साथियों के 4 माह के लिए तशकील दी और बाकी सबको नमाज और इज्तिमा में शिरकत की दावत दी। की तफसीली कारगुजारी सुनो, जब ठहरे टेंट लेकर गए थे जी, सब में 12 जगहों पे, वो भी 12 जगह पे ठहरे। तो एक आध की तफसीली कारगुजारी सुनो, सुबह से शाम तक आपने क्या हुआ किया, वहाँ गए क्या क्या हुआ। तो एक गांव है अगियोल करके, वहाँ हमारा जाना हुआ, तो वहाँ के साथी कुछ जो आगे बड़े किस्म के उनकी जिम्मेदार समझे जाते, तो उन्होंने वहाँ रुकने से मना कर दिया कि भाई जमात वालों को यहाँ नहीं आने देंगे। वहाँ मस्जिद है लेकिन जमात इस्लामिया फिर ऐसे कोई उनके कब्जे में है। आप लोग तो सीधे मस्जिद में चले जाते हैं। गाँव में दाखिल होते ही उन्होंने मना कर दिया था कि आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन फिर भी हम गाँव में दाखिल होते ही जी तो लोग फौरन आ गए, वो गाँव में दाखिल होके मिले थे। अच्छा, आपने कुछ पूछा तो नहीं था कि ठहरे के ना ठहरे? अरे पूछा नहीं था, उन्होंने वो पहचान ही गए क्योंकि लाड़ी लेके जाते हैं तो शक्ल से उनको मालूम हो जाता है कि लोग हैं, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से, रुकने से। लेकिन फिर भी हम गांव में रुके, 3 दिन वहां तक रुके, वहाँ टेंट लगा के रुके। बारिश का मौसम था तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, देखो ये हिम्मत की बात है। अच्छा, वहाँ पर आप ठहरे 3 दिन ठहरे? जी 3 दिन ठहरे। और मुलाकात की पहले घर थे वहाँ तो ज्यादा मकान आते, तकरीबन 22-24 मकान आते हैं, लेकिन सब उसी मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले दिन मुलाकातें हुई, उसमें इतना कुछ कंट्रोल नहीं आया। कितनी मुलाकात हुई पहले दिन? जोड़ी आपने बनाई फिर गई 4 या 6 ऐसे। क्या तरतीब होती थी जोड़ी बनाने, कैसे मुलाकात में बैठते था? सुबह जोड़ी बनाकर सब चीज हुई थी। कितने साथी थे? साथी थे, 7 थे जी। तो कभी 2 जोड़ी बनती थी, कभी 1, इस तरीके से। तो यहाँ बाकी अमल में रहता। हाँ, एक तो जो अतराफ में जो मकानात है, बस्तियां हैं, वहाँ पर एक जोड़ी गई और एक जोड़ी उसी बस्ती के अंदर जी। तो फिर दूसरे दिन उस मस्जिद में ही गए सीधे। कितनी मुलाकात हुई? कितनी मुलाकातें हुई? तो ये तफसीली मालूमात के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैं तफसीली बता रहा था थोड़ा सा, बाकी मेरा पूरा लिखा हुआ है। एक जिहाद की कोई तफसीली कारगुजारी
दूसरे दिन मस्जिद में गए और मस्जिद के अंदर इमाम साहब से भी बात हुई, उन्होंने तो अरेक शरेक करके छोड़ दिया, लेकिन फिर मकामी जो कुछ बस साथी बैठे हुए थे उनको लेकर बैठे, तो उन्होंने फिर यही बताया कि भाई हम लोग तो रुकने देते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी वजह से हम आपको मना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से भी कुछ साथी ऐसे हैं कि अगर उनके ऊपर मेहनत करें हम तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या एक तफसीली मालूमात की। उसके बाद इजमाली तौर पर यह है कि जिन 15 बस्तियों में हमने क़याम किया उनमें से 2 मकामात पर इबादत गाहें और 4 जगहों में मकतब का निज़ाम है। उन 15 बस्तियों में से 12 में हमने टेंट लगाया। और बात करें इकामत की तो 2 बस्तियों में 4 दिन और 5 में 3 दिन, 5 में 2 दिन और 4 बस्तियों में 1 दिन क़याम किया। 10 बस्तियां ऐसी थी जिनमें 5 या उससे ज्यादा मकानात थे और बाकी सब में उससे कम है। क्या तासुर है आपका? बात तासुर के बाद जी कुछ उसमें है लेकिन वो बताने के काबिल नहीं है। तो तासुर की बात करें तो इतना है कि जिस मकसद के लिए दावत तबलीग को अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हम चूंकि अपने माहौल में काम करते हैं तो उतनी अहमियत हमारे अंदर इसकी नहीं होती है। असल जो काम का मकाम है वो वही है, और चूंकि हम लोग दीनी माहौल में जुड़े हुए हैं तो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में तो हमें उतनी अहमियत और उतनी फिक्र नहीं होती है। इस बस्ती में इन बस्तियों में जाने के बाद ये पता चला कि असल तो जगह यही है काम करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ वक्त लगाना चाहिए। और हमारे साथ इंशाल्लाह आइंदा भी निकलने का इरादा किए हैं और हर माह 3 दिन निकलने का इरादा किए हैं। अच्छा, अल्लाह ताला सब जमात के पूरे अमल हो रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अमल। अच्छा, आपके साथ में जो कुरान का सीखने सिखाने का कुछ कुरान के हल्के अगर मुलाकात में नहीं गए हैं किसी मजबूरी की वजह से तो पूरा निज़ाम जो मामूल है उसी हिसाब से होता था। बाकी तो अगर उसमें गए हुए मुलाकात के अंदर तो जो साथी वही है वो कर लेते थे, और क्योंकि मुलाकात से आते थे बहुत लेट आते थे, जो के ऐसे कुछ साथियों ने आपके साथ में रहकर कुछ सुनते ज़्यादा सीखी। इसमें आमतौर पर वक्त ज़्यादा होता है, पैदल चलते जोड़ियाँ होती है, अच्छा खासा वक्त होता है माशाल्लाह। इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिन्होंने सुरते लंबी सुरते भी याद की होगी, सुरते भी सही की होगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो। दोन में करम अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, आज उसके बाद हो गया। हाँ, उनकी तो कारगुजारी आ गई। मायनों ने सुना, मैं समझ सुना। अल्लाह ताला इस जमातों की नकल हरकत को बहुत बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह सारी जमातों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने कहा ना पहले कि आप जो हजरात है काबिल मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कबूल फरमावे। अब ये जाहिर में तो कारगुजारी समझने के लिए थोड़ी तरतीब के लिए जो सुनाई जाती है सही रूप के लिए, वरना हर जमात काम करती है और अच्छा काम करती है। तो देखिए हमारा चलना ही जो है एक एक कदम ये पता नहीं कितने मुल्कों की हिदायत का जरिया बन जाता है, कितने मुल्कों की हिदायत का जरिया बन जाता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन हम चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और गैर महसूस तरीके से अल्लाह ताला लोगों के दिलों को पलटते हैं। एक वक्त ये होता है कि कोई सुबह वाला नहीं होता, किसी मतलब वहाँ जाते हैं तो माशाल्लाह मसाजिद होती है, हुफ़ाज़ होते हैं, उलमा होते हैं। अब देखो ना जितने भी बंजर बस्तियाँ 50 साल पहले इधर कुछ नहीं था, कुछ पुराने हाल नहीं था, जमातों को धक्के मारते थे, निकालते थे, सामान फेंक देते थे। आज पूरी बस्तियाँ मुंतकिल हो गई, पूरी बस्तियों में घर घर हाफिज बन गए, घर घर आलिम बन गए, दिन के दाई माशाल्लाह। और जो आप देखो कि एक दीनी लहर कि माशाल्लाह वहाँ पर वजूद में आई, कैसे कैसे लोग कैसे बन गए, गाने वाले नाचने वाले, कि अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगियों को बदल दिया, तहज्जुद गुजार बन गए, अमाल के पाबंद बन गए। ये काम के अंदर अल्लाह पाक ने अजीब तासीर रखी है, इसका थोड़ा भी बहुत है और बहुत भी थोड़ा है। अब इस वक्त जो सारी कारगुजारी हमारे सामने आ गई, पूरे जिले की आ गई। अब इनमें जितने इस वक्त जो जमातों को देहात दिए थे, बंजर बस्तियां जहाँ मस्जिद नहीं है, मकतब नहीं है, कोई अमल नहीं है, अब अंदाजा लगाओ कि कैसे उनकी जिंदगी गुजरती होगी। तो जहाँ पर अजान की आवाज नहीं आती है ना, एक अजीब महसूस होता है कि आदमी जब अजान की आवाज नहीं सुनता वहां पे ठहरता है ना। अब बरसों से अजान न सुनी हो और बरसों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात न सुनी हो, तो बताओ क्या हाल होगा। कि अब हम बार बार सुनते हैं, जुमा में सुनते हैं, गस्तों में सुनते हैं, मुलाकातों में सुनते हैं, हमारे अंदर कितनी तब्दीली आनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाओगे जैसा होना चाहिए हमारे अंदर नहीं हो रहा,
तो उनके अंदर तो एक भी बार नहीं सुनते कि क्या हाल इनका होगा। फिर वो जो वो घर के घर वो इर्तिदाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसके जिम्मेदार मैं और आप है। अल्लाह पाक ने हमें जो एक फहम दी है, सूझबूझ दी है, और अल्लाह पाक ने हमें जो वो नवाजा है, और इस वक्त ये एक नियामत जोन की हमें मिली है। अल्लाह ने उसके कदर की तौफीक अता फरमाई। ये अजीब नफा, अजीब फायदा हो रहा है। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, देहात के अंदर मसला आता चला जाता, मसाकी, मदारी और माशाल्लाह सफाई शक्लों के जरिए वहाँ दीनदारी वजूद में आ रही है। तो पहले तो ये कि हमें एक हदफ बनाना है, तय करना है कि जितने भी देहात इस वक्त जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं है, नमाज शुरू, तो सबसे पहले वहाँ भी नमाज को शुरू करना है, फिर हमारे दावत को शुरू करना है। उनमें कोई बस्ती बाकी नहीं रखी कि कोई बस्ती बाकी। अच्छा, जमातें जो इस वक्त माशाल्लाह चल कर आई है, ये जमातें, इनसे आपके मोबाइल नंबर है, राब्ते में रहना चाहिए इनसे। साल में एक मरतबा नहीं, बल्कि आप सलाम कलाम करते रहे, इनको बुलाते रहे, इनकी मुलाकातें ले। कभी वक्तन फवक्तन अपनी मसूरात को लेकर चले गए कि वही देहातों के अंदर जरा 2-4 घंटे उसमें जो वो निकाले, इनको लेकर जोड़े, मसूरात का जो वो जोड़ कर दिया अपने मशवरे से। ऐसे ही जो है वो 3 दिन की जमातें, जैसे आप जाते हैं, आप अपनी बनाकर उन्हीं में जाए, आबाद में नहीं, ऐसे बंजरों में 3 दिन लगाने कि 3 दिन से टेंट लेकर जाए, टेंट के अंदर ठहरे, और वहां पर हम ठहरे। लेकिन ये जमात ठहरी, जमात के ठहरने की वजह से दिल नरम हो जाते हैं, और जमात बार बार ठहरती है ना, तो फिर अल्लाह पाक रास्ता निकाल देती है। ऐसे उसके दिल में नहीं आया कि ये जगह आप कर लो, ये तो अल्लाह ने डाला, तो अल्लाह डालते, फिर ऐसे इन्हीं के बच्चे हाफिज आलिम बनते हैं, इन्हीं के बच्चे हाफिज आलिम और दिन की मेहनत का पता नहीं कौन कौन सा हीरा छुपा हुआ है। इसलिए हमें अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए, इनसे रास्ते में रहना चाहिए, इनसे राब्ता बढ़ाना। जिन जिन देहातों में अभी तक बात नहीं सुनते, इनसे आप दोस्ती करो। भाई दोस्ती करने के बहुत सारी शक्लें हैं भाई, बहुत सारे इनका ताल्लुक शहरों से होता है, शादी ब्याह के मौके पर खरीदी के लिए आते हैं, आप इनसे राब्ता रखो। ऐसे मौके पे उनको जो उनके पास में जो पहुंचना है, शादी में हम पहुंचे, मौत मैयत में हम पहुंचे। अभी तो आपने ये चीजें देखी है, लेकिन जब जनाजे में आप पहुंचोगे ना, तो बाज देहात तो उनकी कारगुजारियां ऐसी है कि गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं है और नमाज पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है, गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं है और नमाज पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे मौके पे हमें पहुंचना है, ऐसे मौके पे हम पहुंचे, ये दिल जो ही है, और इनसे जो ये करीब होते हैं, और ये करीब होंगे ना, जब आपसे मानूस होंगे तो फिर सारे रास्ते खुलेंगे। जब आदमी मानूस हो जाता है तो फिर सारे रास्ते खुले, और बहुत जल्दी कोई बस्ती बंजर नहीं रहेगी। इस वक्त जो आपको दी ना, किसी को 20, किसी को 25, 60-70 तकरीबन हो रही है, और हर साल माशाल्लाह ये नस्बत जो है वो बनता रहता है, हर साल इसकी तरतीबें बनती रहती है। लेकिन इस मेहनत की सही तरतीब अगर हम सब, ये जो पूरा मजमा अगर दिल पर ले ले कि हमारे 3 दिन ऐसे बंजर जगहों पे ही लगाने, और ऐसे बंजर में इंटरवेस्ट हमें करना है, तो इंशाअल्लाह साल पूरा होते 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 कोई बस्ती बंजर नहीं रहेगी। अरे भाई, कोई बस्ती नहीं रहेगी। और आप देखोगे इंशाल्लाह धीमे धीमे मदारिस, मकातिब, और धीमे धीमे जो है माशाल्लाह वहाँ उलमा और वहाँ माशाल्लाह दीन की लहर तो वजूद में आएगी वहाँ पर। इतनी जबरदस्त ये मेहनत है, बहुत जबरदस्त मेहनत, और इस वक्त बहुत बड़ा काम आप करके आए हो, बहुत बड़ा काम किया आपने माशाल्लाह। इस वक्त बड़ी कुर्बानी है, मामूली बात है ऐसे मौके पे टेंट के अंदर ठहरना, और ऐसे मौके पे जो है वो पैदल चलना, अल्लाह की निस्बत पर पैदल चलना। आदमी को लाख रुपए पगार देवे ना तो भी आदमी न चले, और इसी जगह पे न ठहरे कि भाई लाख रुपए हम आपको देते, ठहरो यहाँ पर, लेकिन ये तो अल्लाह की निस्बत है, और इस निस्बत पर आदमी ठहरा है, बहुत बड़ा काम हुआ है माशाल्लाह। ये सब जगह पे बीज लग गए, जब बात सुनी नहीं सुनी, क्या ठहरे नहीं ठहरे, सब जगह पे कनेक्शन लग गए। अब जो है थोड़ी सी मेहनत करके पूरे साल भर में एक एक को निशाना बनाकर हम सबको जो है वो जाना है, बार बार ऐसी जगहों पे जहाँ आबाद है वहां नहीं जाना, बल्कि बंजर को निशाना बना है, उसकी जो है वो तरतीबों को हमें जो है वो कायम करना है माशाल्लाह। हर साल करते हैं, लेकिन हिम्मत के साथ में तय करना है, और इसको आपके बार बार मुजाकरे के अंदर लाना है, अपने माहाना मशवरे के अंदर इसको आप लाओ कि भाई आप मस्जिद को एक दिया था, क्या हुआ भाई, आपके हल्के में पहुंच के थे, क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे,
भाई ये जो 3 दिन की क्या कारगुजारी है, इसको जब मजबूत आप कर ले आओगे ना तो इंशाल्लाह 2-4-6 महीने के अंदर आपको कारगुजारी आएगी कि माशाल्लाह ये देहात में जो नमाज शुरू हो गई, इस देहात के अंदर मकसद शुरू हो गया, और माशाल्लाह यहाँ 3 दिन की जमात है, यहाँ अमल शुरू हो गए, या मस्जिद पर जमात जो है बैठना शुरू हो गई, और माशाल्लाह यहाँ से जो वो खुरूज शुरू हो गया, और साल पूरा होते एक माहौल बन जाएगा। हाँ, और एक आदमी बाकी नहीं रहेगा कि जिसे अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को न सुनी हो, कोई बाकी नहीं रहेगा। हर एक के कान पर जो है वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात पहुंचेगी। भाई कोई ऐसा ना हो कि हमारी बात किए बगैर वो दुनिया से रुखसत हो जाए। भाई बात समझ। और इसके असरात जो है ना, फिर इतना नहीं, इसके असरात आगे होंगे जानवरों के अंदर और जो है वो गैरों के अंदर, ये सब के अंदर इसके असरात पड़ेंगे। और जो आज मुल्कों में जो जमातें चलती है ना, उस असरात पड़ रहे हैं कि लोग गैर महसूस तरीके से अंदर दाखिल हो रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? तो बहुत जबरदस्त मेहनत है। तो भाई इसके लिए सब तैयार है? पहले सब तैयार है? तो भाई जो दिया जाएगा मशवरे से उसके अंदर हम जो है वो पहुंचेंगे, और उस पर इंशाल्लाह वहाँ पर जो है वो हम अपनी जमातों को जो है वहाँ भेजेंगे। और ऐसा नहीं कि भाई हमारी जो आबाद बस्तियां वहीं पे 3 दिन की जमात या नहीं, वहीं पर हम लेकर जाएंगे। हमारे जितने पुराने साथी ये तय कर ले, नए साथ में जुड़ जाते हैं, नयों का मसला नहीं है, वो तो जैसे चला वैसे चल जाते हैं। भाई हमें हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी खैर है। अगर थोड़ा कदम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियां करेंगे। तो भाई करोगे? अरे करोगे?